Thank you, Alpesh sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने वर्क कर लिया था। मॉडल शिप का क्वेश्चन लास्ट में किया था, राइट। आज क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 करना है और इसके बाद में इनवर्स रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करें उसकी थियरी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देंगे। कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 13.2 इनवर्स रिलेशन और इंशाल्लाह सैटरडे वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 5 एंड 13 and some important questions regarding to FF4 exam. So please be join regularly and please do the practice because of very well yesterday it is announced that standard 9 and 11 reopen from 1st February. So it is one hope to start 5th to 8th standard from 1st March. And after 1st March, your SA2 exam will become in April. So I think your SA2 exam had to be offline. Okay? And in offline exam, you know very well, the portions divided into objective and descriptive, and we are giving more weightage to descriptive. ऑनलाइन एग्जाम में आपके पास कुछ आंसर देने का स्कोप नहीं रहता, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछ लेते हैं। लेकिन जब भी ऑफलाइन एग्जाम होगी तो उसमें डिस्क्रिप्टिव का वेटेज ज्यादा होगा। सो प्लीज डू द प्रैक्टिस ऑफ द चैप्टर FA3, FA4 and then after the rest of the chapter in our syllabus. Okay, so now we are starting question number 7. Suppose 2 kg of sugar contains 9 into 10 raised to 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kg of sugar and 1.2 kg of sugar? There are two questions in this question. 2 kg of sugar contains 9 into 10 raised to 6 crystal. Two kg of sugar contains 9 into 10 raised to 6 crystal. How many crystals in 5 kg? So we have to direct compare here and then cross multiply this thing. 5 into 9 into 10 raised to 6 divide by 2. 5 nines are 45 and 45 divided by 2 means 22.5 into 10 raised to 6 crystal. It is the answer of your first question, right? There are 22.5 into 10 raised to 6 crystals in a 5 kg sugar. Then what is your second question? How many crystals in 1.2 kilogram sugar? So for this again we are comparing here. In a 2 kg sugar, there are 9 into 10 raised to 6 crystals we have. So 1.2 kg, in 1.2 kg, how many crystals are there? Again, we have to do cross multiplication. 1.2 into 9 into 10 raised to 6 divide by 2. Now I am removing the decimal point 1 by
2 means, sorry, 1.2 means 12 into 9 into 10 raised to 6 divide by 10 into 2. Now 2 6 are 12, 6 9s are 54 divide by 10 into 10 raised to 6. 54 divided by 10 means 5.4 into 10 raised to 6 crystals are there. It is the answer of your second question. Are you get it? Yes, sir. It is very easy. Okay. Now you can see question number 8. Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? हम जब ग्राफ पेज पे या जब भी आप कुछ ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम है ना एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लेते, कुछ सपोज कर लेते हैं। जैसे कि रश्मि ने सपोज किया, उसने क्या सपोज किया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 किलोमीटर, ऐसा उसने सपोज कर लिया। सी ड्राइव सरकार टू 72 किलोमीटर, तो उसके ग्राफ पेज पर जो लाइन वो ड्रॉ करेगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी, वो हमको फाइंड करना है। तो अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट रिलेशन। So we have to cross multiply 72 into 1 divide by 18. 18 fours are 72. So your answer is 4 centimeter. Are you get it? Yes, sir. Question number 9. A 5 meter and 60 centimeter high vertical pole casts a shadow 3 meter and 20 centimeter long. Find at the same time the length of the shadow cast by another pole 10 meter and 50 centimeter high, and the height of a pole which casts a shadow of 5 meter long. Okay, one vertical pole given here. The dimension of a vertical pole is a 5 meter and 60 centimeter high vertical pole cast a shadow of 3 meter and 20 centimeter long. Okay, first of all, we have to convert this 5 meter and 60 centimeter into only one dimension. Here there are two different dimensions, meter and centimeter. So we know very well the 60 centimeter means 0.6 meter. So together we are writing here 5.6 meter. 5.6 meter, it is the height. Okay. And the length of the shadow at that time is 3 meter and 20 centimeter. So again 20 centimeter means 0.2 meter. So together we are writing here 3.2 meter. Now in your first question, what we have to find? We have to find the length of the shadow cast by a vertical pole 10 meter and 50 centimeter high. So 10 meter and 50 centimeter, it means 10.5 meter height. We have to find the length of shadow. And in a second question, the length of the shadow is 5 meter given. Then we have to find the height of the pole. Okay, for first questions, we are comparing here.
So direct we are taking cross multiplication 3.2 into 10.5 divided by 5.6. Removing the decimal point 32 105 upon 56. Now you can see this two decimal points, one from numerator and one from denominator, are directly removed. The decimal point of 10.5 we are removing here, so I am taking 10 in denominator. Now we have to cut it. This is all the thing. So we are cutting directly 8, 8 sevens are 56, 8 fours are 32. Now 7 will be cut by 105. 15 sevens are 105. So what is your answer? 15 fours are 60, and 60 divided by 10 means the length of the shadow is 6 meters. This is your first question. We have to find the length of the shadow. Now in a second question you can see here. Now we are comparing these two things. Here we have to find this question mark. We have to find a height. And for this we have to take cross multiplication 5.6 into 5 divided by 3. You can see this cross multiplication. So in the second question, 5.6 into 5 divided by 3.2. So you can see directly we are removing decimal point because of one decimal points are present in numerator and one in denominator. Again we are dividing by 8. 8 fours are 32. 8 sevens are 56. Now 7 fives are 35 divided by 4. And whenever you cut by 4, 4 eights are 32. 3 is reminder, we cannot divide, so I am taking point and 1 0. So it means 3 0 30. 4 sevens are 28. What is your reminder? 2. And 2 means 20. 4 fives are 20. So 8.75 meter, it is the height of the vertical pole. If you don't understand the division, please see here. 4 eights are 32. 35 minus 32 means 3. We cannot divide, so I am taking 0 and 1 decimal point. 4 sevens are 28. 30 minus 28 means 2. Again I am taking 0. 4 fives are 20. So what is your answer? 8.75 meter. Are you get it? Question number 9. Yes or no? Yes, Yes, sir. It is very easy, right? Yes. Then last question. A loaded truck travels 14 kilometers in 25 minutes. If the speeds remains same, how far can it travel in 5 hours? Again, the questions of direct relation. How can we find? Please see here. A loaded truck travels 14 kilometers in 25 minutes. So what is the distance covered in 5 hours? We have to find distance in 5 hours.
But here you can see the dimensions are different. In one detail, dimension is minute. In second detail, dimensions are given in hours. So first of all, we have to convert this dimension 5 hours into the minute. So we know very well hour means 60 minutes. So 5 60s are 300 minutes. Okay. Now we are taking cross multiplication 14 into 300 divided by 25. We are cutting by 5. So 5 5s are 25. 5 6 are 30 and 1 0 60. Again cut by 5. 12 5s are 60. Now multiply 12 and 14. 14 tens are 140 and 42s are 28. Means 168 kilometer the truck travels in a 5 hours. I hope you all are clearly understood the exercise 13.1. Yes or no? Girls? Yes. Okay, now write down question number 7, 8, 9, and 10. Please hurry up. Written. If you want to take screenshot, please take. Right? Yes, sir. If you want to take screenshot, please take. And if you want to write down this whole thing, you can write. Okay. How many girls are present? Hmm? 11. 11 girls. Okay, Okay. chalo. Now, just I am explaining you inverse relation, and then after in next lecture we will start exercise 13.2. What is inverse relation? Please see here. Inverse relation means whenever one quantity is increased, the other quantities are decreased. What I am saying? Whenever you increase your speed, you can see the timing will be decreased. It means speed and time are in inverse relation. Okay? And collective words
Please remember this word, collective words. Collective words using by the collective words, it is known as inverse relation. छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मुझे जल्दी से बताना। मान लो कि कोई एक वॉल हमको बनानी है, ठीक है। 100 पीपल यहाँ पर आए, 100 लेबर यहाँ पर आए, उन लोगों ने वॉल बनाना स्टार्ट की। उन लोगों ने 100 डेज में उस वॉल को कंप्लीट करके दे दिया। समझना मेरी बात। 100 पीपल या फिर लेबर, उसने वॉल बनाने स्टार्ट की और 100 डेज में बना के दे दी। तो अगर मान लो कि 100 की जगह पर 1000 लेबर एक साथ में आ जाए, तो वॉल कितने दिन में प्रिपेयर होगी? 50 days. नो, 10 days. फिर से सुनो। 100 लोग आ गए, उन लोगों ने वॉल बनानी थी, उसको स्टार्ट कर दी, 100 दिन में बना के प्रिपेयर कर दी। तो अगर मान लो कि 100 की जगह पर 1000 लोग आ जाए, तो कितने दिन में प्रिपेयर होगी? 50 days. नो बेटा, 1 day. 10 डेज में प्रिपेयर होगी, 10 डेज में। क्यों पता है? 100 लोग जो काम कर रहे थे उसकी जगह पर 1000 लोग काम करने लगे, तो ये हो गया कलेक्टिव। और जब भी कलेक्टिव वर्क होता है, ये होता है इनवर्स रिलेशन। और इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो गई 100 में से 1000, तो दूसरी क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। पहले 100 दिन में प्रिपेयर हुई थी, अब कितने दिन में होगी? 10 दिन में। Rest. इट इज नॉन एज इनवर्स रिलेशन। छोटा सा मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं आपके क्लासरूम का, ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो कि आपका क्लास जो है उसको क्लीन करना है। उसे क्लीन करने के लिए मान लो कि कोई एक गर्ल जो है उसको क्लीन करे, तो मान लो कि 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा लग गया, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैं आपके क्लासरूम में आया और मैंने देखा कि क्या है ये सब, रैपर पड़े हुए हैं, नीचे पेज पड़े हुए हैं, रफ पेज है, ये है पेन, पेंसिल, सब वेस्टेज नीचे पड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि नहीं भाई, एक गर्ल्स को नहीं बोल रहे हैं काम करने के लिए, हम कलेक्टिव वर्क करते हैं। अब 50 गर्ल्स थी। पहले एक गर्ल्स जो 50 मिनट में काम कर देती थी, अब अगर 50 गर्ल्स एक साथ में मिलकर काम करेगी तो कितने मिनट में हो जाएगा? 1 minute. 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 minute. 1 मिनट में। सिंपल, आप हिसाब देख लो ना कि एक गर्ल 50 मिनट में कंप्लीट करती है, तो 50 गर्ल कितने मिनट में कंप्लीट करेगी? 1 दिन में, सॉरी 1 मिनट में। समझ में आई बात? Yes. इट इज नॉन एज इनवर्स रिलेशन। बहुत ही बढ़िया रिलेशन है इनवर्स रिलेशन, इतना याद रखना। कलेक्टिव वर्क जहां पर आएगा वहां पर इनवर्स वर्ड का, सॉरी इनवर्स रिलेशन ही होगा, ठीक है। दूसरा आपको एग्जांपल दे दो। मान लो कि आपके घर पे गेस्ट आ गए, बहुत सारे गेस्ट आए, 15-20 गेस्ट आ गए, उनके लिए खाना बनाना था। और खाना बनाने के लिए आपकी मम्मी जो है वो घर पे रोटी बनाती है, राइट? तो जो रोटी बनाएगी, तो 20 लोगों की रोटी वो अकेले बनाएगी, तो 1-1.5 घंटा, 2 घंटा निकल जाएगा। तो क्या करेगी आपकी मम्मी? अकेले नहीं बैठेगी, 4 लेडीज एक साथ में बैठ गई, चलो हम साथ में मिलकर रोटी बना देते हैं। तो 4 लोग हो गए तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा 100%। पहले वो 1 घंटे में बनने वाली थी, लेकिन अब 4 लेडीज एक साथ हो गई तो 15 मिनट में बन जाएगी।
यहाँ पर हम दूसरे जो एजम्पशन है उसको उसको बाकी रखेंगे, बाकी के जो फैक्टर है उसको अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ। ठीक है, एक बहुत ही फेवरेट जोक्स है। क्या जोक्स है? कि अगर मान लो कि एक लेडीज जो है एक काम 10 दिन में खत्म करती है, तो दो लेडीज होगी तो 5 दिन में खत्म करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? हाँ। लेडीज एक में से दो हो गई, तो 10 दिन में काम खत्म होने वाला था, उसकी जगह पर कितने दिन में खत्म हो गया? 5 दिन में। 5 दिन। तो अब अगर 3 लेडीज हो जाए तो कितने दिन में खत्म होगा? 3 नहीं, चलो 4 लेडीज हो जाए तो कितने दिन में खत्म होगा? 1 दिन। नहीं, 2.5 डेज में होना चाहिए ना। हाँ। होना चाहिए ना। दो में से 4 लेडीज हो गई, मतलब कि डबल हाँ हो तो गया। तो सामने 5 दिन में पहले जो वर्क खत्म हो रहा था, उसकी जगह पर अब कितने दिन में खत्म होगा? 2.5 डेज में। तो वो फेवरेट जोक्स क्या है पता है आपको? कोई ऐसा बोलते हैं कि एक लेडीज 10 दिन में काम खत्म करती है, तो 4 लेडीज मिलके कितने दिन में काम खत्म करेगी? तो वो आंसर देता है कि नहीं, वो काम खत्म ही नहीं होगा। ठीक, क्यों? ठीक, वो सब बातें करने लगेगी, और वो हाँ बातों में हाँ। इतनी उलझ जाएगी कि वो काम साइड में रह जाएगा, अगर 4 लेडीज को एक साथ में कर दिया तो। ये हाँ। ये सही है कि गलत है ये? सही है। सही है। हैं? गलत। आप घर पे मालूम करके मुझे कल के लेक्चर में बताना कि क्या ये सही है कि एक लेडीज जो गलत। है वो 10 दिन में काम खत्म करती है, तो 4 लेडीज कितने दिन में काम खत्म करेगी? तो सर ने ऐसा बोला है कि नहीं, वो काम खत्म नहीं होगा। क्यों? तो वो चारों बातें करने लगेगी। ठीक है, ऐसा कल मुझे नहीं। पूछ के बताना कि ये सही है या गलत है। काम खत्म तो होगा लेकिन बहुत लेट हो गया। हाँ, मतलब वही बात है कि हमारे टाइम पे तो नहीं होगा ना खत्म। हम्म। ठीक है, तो ये सब इनवर्स रिलेशन के एग्जाम्पल है। वर्क डन, नंबर ऑफ पर्सन, टाइम, ये सब जो है ना, ये इनवर्स रिलेशन के एग्जाम्पल। एक ही वर्क करना है, खाली क्लास को क्लीन तो करना है, तो एक गर्ल करेगी तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, दो गर्ल करेगी तो टाइम हाफ हो जाएगा, 4 गर्ल्स करेगी तो उससे भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स जो वर्क डन और नंबर ऑफ पर्सन्स, ये जो दो क्वांटिटी है वो इनवर्स रिलेशन में है। दूसरा मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कलेक्टिव का। क्या एग्जांपल दिया था? मैंने अनाउंसमेंट कर दिया आपके क्लास में कि जिसको मैथ्स में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएंगे उसको मैं 1000 कलेक्टिवली प्राइज देने वाला। सो 1000 कलेक्टिवली प्राइज का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि अगर दिलीशा एक को ही 20 आउट ऑफ 20 आते तो उसको 1000 प्राइज मिल जाएगी। लेकिन मान लो कि दिलीशा की जगह पर दो गर्ल्स को 20 आउट ऑफ 20 आ जाए, दोनों को 1000 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कलेक्टिवली बोला है। तो तो कितना मिलेगा 500। दोनों को? 500। It is the example of inverse relation. Number of person, whenever the number of person are increases, the price, the cost of the price are decrease. दो में से 4 गर्ल्स को आ गए 20 आउट ऑफ 20, तो अब 500 भी नहीं मिलेंगे, 250 सबको मिलेंगे। तो देखा ना आपने कि नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहा है तो उसके सामने कॉस्टिंग जो है वो क्या हो रही? डिक्रीज हो रही है। यस। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैंने स्पीड और टाइम का भी दिया था इनवर्स रिलेशन में, थोड़ा सा अगर याद हो तो आपको। स्पीड और टाइमिंग का क्या रिलेशन दिया था? क्या आप घर से निकल के स्कूल तक वॉक करते करते आते हो तो आपकी स्पीड बहुत कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। उसकी जगह पर आपने स्पीड इंक्रीज कर दिया, आप साइकिल लेके आ गए तो टाइम कम लगेगा। बाइक लेके, स्कूटी लेके आ गए तो उससे भी कम टाइम में पहुंच जाएंगे। तो ये जो रिलेशन है
उसी को बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशन। बस खाली इतना माइंड में रखना इनवर्स रिलेशन में कि एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा, या तो फिर एक डिक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा। बस इतना माइंड में रखना। जो मैं थियरी क्लासरूम में बोल रहा हूं ना उसको प्लीज याद रखना। किसी को पता नहीं चलेगा ऐसा क्वेश्चन पेपर है या इस बार एक भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का नहीं है। एक भी क्वेश्चन जो है वो गाइड में से या मटेरियल में से नहीं है। ऑनलाइन सर्च करेंगे फिर भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्च कर लिया है और नहीं मिला है, वैसे ही क्वेश्चन रखे हैं। बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर यहाँ पर होगा क्लास में तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से सब क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। ठीक है गर्ल्स? ओके। ठीक है, चलो बताओ कोई डाउट? नो सर। ओके चलो, तो कल के लेक्चर में 13.2 करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है उसमें भी, और देख लेंगे बढ़िया से। एक बार देख ही लेते हैं कितने क्वेश्चन है ताकि हमको पता चले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कल आराम से खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो बाय ऑल ऑफ यू। ओके सर, बाय। Sir, have a nice day.